स्टूडेंट्स अज आप लोकलाइज ते डीलोकलाइज्ड कैमिकल बॉन्ड बारे पढ़ना है। फर्स्ट इज़ लोकलाइज्ड कैमिकल बॉन्ड। लोकलाइज्ड कैमिकल बॉन्ड ਲਈ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। when two hydrogen atoms combine to give H2 molecule, sigma bond is formed or covalent bond is formed by sharing of one electron from each hydrogen. So H2 contains two electrons. हरेक हाइड्रोजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਤੁਸੀਂ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਥਿਊਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਗਮਾ 1s ਤੇ ਸਿਗਮਾ ਸਟਾਰ 1s ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਬੌਂਡਿੰਗ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ। ਸੋ ਦੋਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਅਰ ਮੋਸਟ ਦੇ ਆਰਬਿਟਲ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਿਗਮਾ 1s 2 ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟੋਮਿਕ ਆਰਬਿਟਲ ਤੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਬਣਦੇ ਆ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੋ 'ਚ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਨੇ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਲੀ ਚਾਰਜ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੈਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਿਗਮਾ 1s ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਸਪਿਨ ਅਪਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਬੋਥ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਪਿਨਸ, ਸੋ ਦੇ ਕੈਨ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਆਫ ਦ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਅਤੇ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਆਰਬਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਦੈਨ ਬੁੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਸੋ ਯੂ ਲਰਨ ਦਿਸ। The probability of finding these electrons is greatest in the region between the two nuclei is due to this concentration of negatively charged electrons between the two positively charged nuclei that the two nuclei are bonded together. So beta briefly ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ words ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ in between the nuclei there are two electrons with opposite spins, so they don't now repel each other because they have opposite spins. Okay, ਹੁਣ ਇਹ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਡਲ 'ਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹਿਲਜੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਮੂਲੀ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਸ। ਓਕੇ, two paired electrons are said to occupy a localized molecular orbital and the bond formed is known as localized bond. A localized bond may therefore be defined as the bond whose electrons are greatly concentrated in the region between the two nuclei only. ਪਹਿਲਾਂ ਬਟ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿਓਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਦੱਸ ਦਿਓਗੇ ਦ ਬੌਂਡ whose electrons lie between the two nuclei, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਲਾਈਨ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਬੌਂਡ। ਫਿਰ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2 ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਈ ਬੌਂਡ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ they are example of sigma as well as pi bond, they are example of localized bond. फिर अगली एग्जाम्पल डाईइन ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੇਟਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਸਿਗਮਾ ਐਂਡ ਪਾਈ ਬੌਂਡਸ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਲਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੀ ਤੇ ਇਥਾਈਲੀਨ ਇਹਦੀ ਇਥੀਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕਮ ਟੂ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। then comes delocalized chemical bond. अच्छा, ਹੁਣ एग्जाम्पल ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1,3-butadiene ਦੀ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੈਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ, ਹੈ ਨਾ। ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਨੇ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਬਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੌਨਜੂਗੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਟਰਨੇਟਲੀ ਡਬਲ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ CH2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH CH2 ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ CH ਡਬਲ ਬੌਂਡ CH2। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਡਬਲ ਬੌਂਡਸ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡਸ ਨੇ, ਸਿਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਨਜੂਗੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ CH3, ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ 1,3-butadiene ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਆ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੋ ਹਾਈਡਰੋਜਨਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, 3 ਸਿਗਮਾ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ,
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ sp2 ਹਾਈਬ੍ਰਿਡਾਈਜ਼ਡ है। सैकेंड वाली कार्बन फिर एक कार्बन ना बना रही है लैफ्ट हैंड साइड ते, एक राइट हैंड साइड ते कार्बन ना बना रही है, तो एक हाइड्रोजन ना बना रही है ना। दो जिथे डबल बॉन्ड दिखाने, एक तो पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है। सो एक हाइड्रोजन नाल दो कार्बनस नाल अगेन 3 सिंगल बॉन्ड्स आर बीइंग फॉर्म्ड बाय द कार्बन। सो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। थर्ड ते चलीए जाइए तो आ सैकेंड वाली कार्बन का केस है, एक हाइड्रोजन नाल बॉन्ड, एक लैफ्ट वाली कार्बन नाल, एक राइट वाली कार्बन नाल। सो ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो एक्सट्रीम राइट वाली CH2 वाली कार्बन, ये भी लैफ्ट हैंड साइड ते एक सिग्मा बॉन्ड है कार्बन नाल, ते इनू 2 हाइड्रोजनस लगियां हुई हैं। सो इट इज़ अगेन मेकिंग 3 बॉन्ड्स, सिग्मा बॉन्ड्स। सो सारियां दियां सारियां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड दिखाने लई असीं कहने कि 120 का बॉन्ड एंगल है ना। एक सारियां sp2 वाले जिहड़े हुंदे ऑर्बिटल्स वो इक्को प्लेन च पए हुंदे आ। तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल सेम प्लेन च, जिवें पेज ते रखियां हुण सारियां कार्बनस, तो प्लेन ऑफ पेपर दे विच ही पईयां होणगीਆਂ। ते जिहड़े हुंदे आ 4th p ऑर्बिटल रह गया अनहाइब्रिड, वो इहदे राइट एंगल से हुंदा है। पेज दे एक लोब उत्ते प्रोजैक्ट कर रही होवे, एक थल्ले कर रही होवे। सो सारियां कार्बनस दी एक एक लोब पेज ते जे रखियां हुण चारों कार्बनस, बाकी दे ऑर्बिटल्स हाइड्रोजनस भी लैफ्ट साइड ते वो भी पेज ते पईयां हुई, कार्बनस भी सारियां पेज ते पईयां हुई। उस पेपर च जे असीं ड्रॉ करिए बॉन्ड्स सिर्फ उपर प्रोजैक्ट कर रहे हैं अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल्स दियां लोब्स, ते नीचे वाली साइड पेज ते प्रोजैक्ट कर रही हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स p दियां दूजियां लोब, सैकेंड लोब है जिहड़ी, एक उत्ते एक थल्ले है। अच्छा हुण पॉसिबिलिटी की है कि जिहड़ा फर्स्ट कार्बन है इट कैन ओवरलैप अपर लोब है जिहड़ी इहदी, सैकेंड वाली कार्बन की अपर लोब ना ओवरलैप कर ले, थर्ड वाले की अपर लोब है जिहड़ी 4th वाली कार्बन ना ओवरलैप कर लवे। पर आ थल्ले दिखाया होया, आ देखो आ दिखाई हुई है स्ट्रक्चर। सो चांस की है कि फर्स्ट कार्बन की अपर लोब ओवरलैप्स विद अपर लोब ऑफ सैकेंड, या थर्ड वाले की 4th ना कर लवे, है ना। ये शायद इत्थे दिखाया ही होना, आ दिखाया होया कि पॉसिबिलिटी ये है फर्स्ट सैकेंड दे विच डबल बॉन्ड बनता है, थर्ड 4th दे विच डबल बॉन्ड बनता है। पर क्योंकि सारे ऑर्बिटल्स इक्को जिहे है, देयर इज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी दैट डबल बॉन्ड मे बी फॉर्म्ड बिटवीन सैकेंड एंड थर्ड कार्बन, ये लोब्स ओवरलैप करदियां होण। तो हुण इहदा मतलब तीनों जिहड़े डबल बॉन्ड्स ने, जिहड़ी फर्स्ट सैकेंड दे विचाले, थर्ड 4th दे विचाले, ते सैकेंड थर्ड दे विचाले इक्वल प्रोबेबिलिटी है। तो ये जिहड़ी इक्वल प्रोबेबिलिटी है, इहनूं असीं दिखाउण लई जिहड़ी स्ट्रक्चर दिखावांगे, इट इज़ दिस कि उपर चारों दे चारों ऑर्बिटल्स पार्शली ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे नाल, नीचे वालियां लोब्स आपस में ओवरलैप कर रही हैं। सो इनू कहने हैं कि उपरला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज़, जां जिहड़ा पाई बॉन्ड है दैट इज़ डीलोकलाइज्ड ओवर द 4 कार्बन एटम्स, इंस्टैड ऑफ कि पहले 2 च होवे ते फिर अखीरले 2 दे विच होवे, है ना, या मिडल वाले 2 विच होवे। सो ये हो गया डीलोकलाइज्ड बॉन्ड, जिथे इलैक्ट्रॉन्स किसी खास एटम नाल बाइंड नहीं होए हुए, दे कैन शिफ्ट देयर पोजीशन। सो देयर इज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ शिफ्टिंग। सो इनू आप इस तरह दिखाने हैं, एक टायर उपर बन गया, एक नीचे बन गया। सो पाई इलैक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड ओवर ऑल द 4 कार्बन एटम्स। अच्छा हुण आ मैं अंडरलाइन करके तुहानूं दस्सिया, तुसीं ये वाला पढ़ना है, वी डू नॉट हैव pairs of electrons mainly confined to the region between 2 nuclei, the bonds formed are no longer localized। so ये तुसी explanation च लिखना, वैसे मैं तुहानूं दस्सिया ही है। okay, a delocalized bond may be defined as bond whose electrons are spread over the nuclei of more than 2 atoms। ये बेटा ਉਹਦੀ definition देओगे, शुरू च पहला localized bond की definition ते फिर आह वाली the bond whose electrons आर स्प्रैड ओवर द न्यूक्ली ऑफ मोर दैन 2 एटम्स, ये दी डेफिनेशन दे के फिर तुसीं आ जिहड़ियां स्ट्रक्चर्स ने ये दिखा दूँगी 1,3-ब्यूटाडाइन लई कि इहदी sp2 हाइब्रिडाइज ने सारियां कार्बनस, एक एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल सारी कार्बनस के, एक एक लोब उपर दिखा रहे हो, नीचे दिखा रहे हो। फिर तुसीं आ पॉसिबिलिटी दिखा रहे हो फर्स्ट सैकेंड थर्ड 4th वाली ओवरलैप दी। फिर तुसीं कहने कि प्रॉबेबल अगली जिहड़ी हैगी सैकेंड थर्ड की भी प्रॉबेबिलिटी है, ये भी इक्वल चांसिस है क्योंकि हरेक कार्बन खब्बे सज्जे दोनों पासे ही ऑर्बिटल का ओवरलैप हो सकता, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है जिहड़ा। सो दैन यू कम टू दिस कि इहदा रिजल्ट ये है कि सारियां दे विच ही थोड़ी थोड़ी बॉन्डिंग हैगी है। जिहड़ा पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड है जिवें सैकेंड कार्बन का लैफ्ट ते भी राइट ते भी, पहली नाल भी तीजी नाल भी थोड़ा ओवरलैप कर लिया,
तीजी कार्बन का दूजी कार्बन नाल भी ते चौथी कार्बन नाल भी ओवरलैप कर लिया। एज अ रिजल्ट अ टायर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स और क्लाउड ऑफ इलैक्ट्रॉन्स, there is one cloud above the 4 carbon atoms and one cloud of pi electrons below the plane of carbon atoms. So this is delocalized electron bond, है ना। So this is delocalized bond. आ बेटा सारियां दसियां हुई ने, है ना। then effects of delocalization of bonds, की इफेक्ट होंगे है। इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ 1,3 ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਹ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੌਂਡ ਵੀ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਅਤੇ ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਬੌਂਡਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ they are of equal length। so ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੌਂਡ ਲੈਂਥ ਹੋ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 149 ਪਿਕੋਮੀਟਰਸ ਆ 1,3 ਬਿਊਟਾਡਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। neither corresponds to carbon carbon single bond 154 picometers nor carbon carbon double bond length of 134 picometers। ठीक है, एक ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। second is effect on movement of electrons। in delocalized bonds the electrons have greater freedom of मूवमेंट दैन इन लोकलाइज्ड बॉन्ड। ये तो सानू अंडरस्टूड ये डिफरेंट होगी ना पहले बॉन्ड नालों। सो इलैक्ट्रॉन्स आर मोबाइल हेयर, दे कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट, दे आर नॉट यू से फिक्सड ऑन वन कार्बन, दे कैन मूव इन इलैक्ट्रॉन क्लाउड। दैन थर्ड इज इफेक्ट ऑन स्टेबिलिटी। delocalization bonds leads to decrease in energy of system। सो एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज़ होंदी है, तो आप पहला भी पढ़िया कि वो सिस्टम स्टेबलाइज हो जाता है, जिहदी भी एनर्जी डिक्रीज़ होंदी है इट गेट स्टेबलाइज्ड। इन अदर वर्ड्स delocalization of bonds makes the molecule more stable। so this energy of stabilization is known as delocalization energy। ये दसी हुई है 1,3 ब्यूटाडाइन ਲਈ 16 किलो जूल पर मोल है। ठीक है। सो सैकेंड एग्जाम्पल इन्हें दी हुई है बेंजीन की। सो बेंजीन की ड्रॉ करोगे तो अगेन यू विल से ऑल द 6 कार्बन आर sp2 हाइब्रिड। तो आ स्कैल्टन जो बन रहा है, हरेक कार्बन 3 बॉन्ड बना रही है, 2 हरेक कार्बन के बॉन्ड नेबरिंग कार्बनस नाल बन रहे हैं, तो तीजा बाहर एक हाइड्रोजन है जी हरेक का केस ये है। सो जो स्कैल्टन सिंगल बॉन्ड्स का दिखा दैट इज़ ड्यू टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ईच कार्बन। तो हरेक कार्बन तो इस तरह ही तुसीं डबल लोब दिखा रहे हो, है ना, उपर है थले है। फिर पॉसिबिलिटी आ वाली होगी कि उपरलियां 2 कार्बनस दे उपर लोब्स जिहड़ियां ओवरलैप करदियां, उपरलियां थलड़ियां लोब्स आपस बनाउंदियां डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड। इवें जिवें लैफ्ट ते दिखाई हुई है 2 लोब्स ओवरलैप होंदियां, फिर लैफ्ट ते है ना, मतलब पहलियां 2 छड्ड के फिर गैप छड्डना, फिर अगलियां 2 नूं कनैक्ट करना, फिर गैप छड्ड के अगलियां 2 नूं कनैक्ट करना। तो जिहड़ियां हुण असीं छड्डतियां सी जिथे बॉन्ड नहीं सी, सैकेंड स्ट्रक्चर वो दिखा रही है कि जे असीं शुरू कर लैंदे हां दिस इज़ 1 2, तो हुण जिहड़ियां खाली थां सी कि दूजे पासे ओवरलैपिंग दिखाई हुई है, डबल बॉन्ड्स दूसरे पासे दिखाते हुए ने दोनों स्ट्रक्चर्स ने जिहड़ियां, है ना। सो दैन अल्टीमेटली ऑल 6 lobes on 6 carbons they overlap on the upper side, upper lobes overlap on the upper side and lower lobes overlap on the lower side। सो इस तरह करके 2 इलैक्ट्रॉन क्लाउड मिडल वाली कार्बन का स्केलेटन है, रिंग बनाई हुई है हैक्सागोनल, तो उपर एक टायर दिखाया होया, उपरलियां लोब्स उत्ते पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड बनाउंदियां, तो नीचे वाला दिखाया होया कि नीचे पाई इलैक्ट्रॉन क्लाउड बन रहे हैं। ओके, दैन तुसीं ये 2 ही स्ट्रक्चर्स कर लो वैसे तो। फिर दिखाया होया कि कित्थे होर कित्थे वैलिड है, जिस तरह आ स्ट्रक्चर दी हुई है CH2 डबल बॉन्ड के नाल जे कोई इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम लग्या होया Cl होवे, OH वाला कोई ऑक्सीजन होवे, नाइट्रोजन होवे, नाउ Cl हैज़ 3 लोन पेयर्स ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। तो ये बेटा दिखावांगे असीं कि कॉन्जुगेशन किवें हो सकती है ना, जदों मोबाइल इलैक्ट्रॉन्स ने डबल बॉन्ड किते फिक्स नहीं है, पोजीशन शिफ्ट कर सकता है, तो उन्होंने आपां डीलोकलाइज्ड डबल बॉन्ड कहने हैं ना। अच्छा, हुण इत्थे Cl का एक लोन पेयर दिखावांगे,
CHCl वाला सिंगल बॉन्ड वाल नूं शिफ्ट हो के तो इत्थे डबल बॉन्ड बन जूगा। तो CH2 डबल बॉन्ड CH वाला डबल बॉन्ड है जिहड़ा इट विल कम ऑन CH2 वाले कार्बन ते, मतलब सज्जे पासे वाला डबल बॉन्ड बन जूगा, Cl ते पॉजिटिव चार्ज आ जूगा, तो लैफ्ट वाला सिंगल बॉन्ड हो जूगा, है ना। जो डबल सी ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ इलैक्ट्रॉन्स पहले CH2 आ जाएंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर कि जे असीं कहता कि एक बारी CH2 डबल बॉन्ड CH है, दूजी स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग बनावांगे तो Cl तो सिंगल बॉन्ड में शिफ्ट होके इत्थे डबल बॉन्ड बन जू, तो पहला डबल है सिंगल हो जूगा। सो दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिप्रजेंटेड फॉर दिस। दैन फॉर एलिलिक कार्बेनाइन आ दिखाया होया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 तो CH2 ते नैगेटिव चार्ज है। हुण यही दो इलैक्ट्रॉन जिहड़े नैगेटिव चार्ज वाले है दे कैन बी शिफ्टड टू एरो नाल शिफ्ट कर देंगे सिंगल बॉन्ड वाल नूं, तो राइट हैंड साइड वाला सिंगल बॉन्ड डबल च कन्वर्ट हो जू। तो हुण इत्थे नैगेटिव चार्ज हुण इत्थे पॉजिटिव नहीं लावांगे, न्यूट्रल हो जूगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH की थां ते सिंगल बॉन्ड आ जूगा। तो यही इलैक्ट्रॉन CH2 शुरू वाले CH2 ते आ जाएंगे, तो स्ट्रक्चर वो दिखाई होनी है शायद नहीं है। यू कैन मेक द स्ट्रक्चर। सो स्ट्रक्चर वैसे इस तरह ही होनी है भी एक बारी खब्बे पासे नैगेटिव चार्ज दिखा सकते हैं सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एक बारी राइट हैंड साइड पर जिधर नैगेटिव चार्ज है उदों उल्ट साइड पर जे पहले पासे नैगेटिव चार्ज है तो लास्ट वाला बॉन्ड डबल होगा, जे पिछले तो नैगेटिव है तो पहला देखो बॉन्ड डबल है ना। सो ये स्ट्रक्चर असी तिन्ना ते दोनों ही डॉटर डबल बॉन्ड दिखा के उत्ते सारे ते नैगेटिव चार्ज इकट्ठा लाया जा सकता है। सो दिस इज़ अबाउट delocalized bonds।